Hello. Can you hear me at the back? Okay. So online student, can you hear me now? Can you hear me now? Is it okay? So today we are going to take a topic called women safety in India, and where we can connect this topic in our syllabus. तो पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि सिलेबस में कहाँ काम आएगा. Meghalayan sisters, don't worry, maximum part will be in English so that you can understand also, है ना? So first talk about the syllabus. When we talk about the syllabus of APSC and UPSC, in our essay portion, every 2-3 years you will find one topic related to women for sure. That is given. Women के बारे में ऐसे आता ही आता है. मैंने 4 बार मेंस दिया है, 2 बार मैंने वुमेन के बारे में ऐसे के टॉपिक लिखा ही लिखा है ना. इन माई 4 मेंस आई हैव रिटन 2 essays on women in 2 different मेंस एग्जामिनेशन. तो ऐसे में वुमेन का टॉपिक इज गोइंग टू हेल्प यू. आफ्टर ऐसे देयर इज जीएस पेपर 1. इन जीएस पेपर 1 देयर इज इंडियन सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी नाम सुना है आप लोगों ने? ऐसा कुछ टॉपिक सुना है? इंडियन सोसाइटी. सोसाइटी में in Indian society there is women and organizations related to women. Women and organization related to women, that is there in your syllabus. Organization related to women, है ना? Women related organization. तो in GS paper 1 every year there will be at least one question which is to be asked or which will be asked on women. समझ में आ रही बात? ठीक है. In GS paper 2, in GS paper 2 there is one complete topic called social justice. In social justice we study topics like education, we study topic like health, we study topics like vulnerable section. What kind of section? बोलो. Vulnerable section. Vulnerable, है ना? And women is one of the vulnerable section. Women, children, दे आर वल्नरेबल. वल्नरेबल समझते हो क्या? वल्नरेबल मतलब बहुत जल्दी परेशानी में जो आ सकते हैं. थोड़ा फ्लड आया, परेशानी में आ गए, प्रॉब्लम में आ गए, उसको हम क्या बोलते हैं? वल्नरेबल सेक्शन. इवन आफ्टर लिटिल बिट ऑफ डिस्ट्रेस, है ना, दे आर इन प्रॉब्लम. सो दैट काइंड ऑफ सेक्शन कैन बी कॉल्ड एज वल्नरेबल सेक्शन. फॉर एग्जाम्पल वुमेन, चिल्ड्रेन, ओल्ड एज पॉपुलेशन, है ना, डिसेबल्ड पर्सन्स, poor person, scheduled caste, scheduled tribe, all can be clubbed into the vulnerable section group. So we all have to study GS paper 1 Indian society separately, social justice separately. So here also you will be studying about women. In GS paper 1 also you will be studying about women, है ना. For essays is written based on your knowledge on GS1, GS2, GS3, GS4, and also for APSC GS paper 5. Whatever knowledge you will acquire over the time, जो भी आप क्लासेस में पढ़ोगे, be it economics, history, geography, polity, है ना, governance, all the knowledge will be clubbed and you will write essays. ठीक है. तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है. डायरेक्टली कहाँ कहाँ आ सकता है? ऐसे में, GS1 में, GS2 में, इनफैक्ट GS4 एथिक्स में भी आ सकता है, बट लीव दैट, यहां तो आ ही सकता है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ, है ना, विथ द टॉपिक कॉल्ड वुमेन सेफ्टी इन इंडिया. तो पहले ये बताओ कि आर वुमेन सेफ इन इंडिया? बोलो. नो सर. बट कैन वी कॉल, कैन इज दिस क्वेश्चन एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन? बोलो. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन. कैन वी से इट इज यस और नो बेस्ड ऑन सम इंसिडेंसेस, और वेयर इफ वुमेन आर नॉट सेफ इन इंडिया देन वेयर वुमेन आर सेफ इन द एंटायर वर्ल्ड? एवरीवेयर इन द एंटायर वर्ल्ड देयर आर incidences related to women. So that means there is no place on the earth where women are safe. So इसका मतलब there is something off with the entire world
That means there is something off with the entire world, why women are not safe in the entire world. And that is the structure of the world, structure of the society of the world. And that is the structure of the society of the world, structure of the society. What is the structure of the society? The structure of the society is patriarchal. स्ट्रक्चर क्या है? पैट्रियार्कल. पैट्रियार्कल मतलब मेन डोमिनेटेड सोसाइटी. कैसा सोसाइटी है? मेन डोमिनेटेड, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इज मेल डोमिनेंट, है ना. डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है? मेल के हाथ में. समझ में आई बात? वुमेन के लिए रोल कौन असाइन करता है? मेल असाइन करते हैं. And that is because this is called patriarchal structure. पैट्रियार्की. आर्की मतलब क्या होता है? थ्रोन. गद्दी पे कौन बैठा है? मेल बैठा है ना. अकॉर्डिंग टू मेल द रूल्स आर मेड इन द सोसाइटी. अकॉर्डिंग टू मेल्स रूल्स आर इम्प्लीमेंटेड इन द सोसाइटी. अकॉर्डिंग टू मेल्स डिवीजन ऑफ लेबर इज डन बिटवीन मेल एंड फीमेल, है ना. कि बाहर का काम मैं देखूंगा, घर पे झाड़ू तुम लगा लो, ठीक है. सो दैट्स वाई दिस इज ऑल clubbed into a single term called patriarchy or patriarchal, and that is a structural problem. Structure, the societal structure is patriarchal. समझ में आ रही बात? ठीक है. इसी पे यूपीएससी ने ऐसे पूछा था, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, है ना. आवर बॉडीली स्ट्रक्चर इज वी हैव हेड अब, है ना. भूत बन जाएंगे तो हेड इधर भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है. ठीक बात है. स्त्री देख के आए कि नहीं तुम लोग? नहीं देख के आए. अच्छा, क्या करते हो फिर तुम लोग, ये बताओ. कुछ तो करते होगे, नहीं करते हो कुछ भी? पढ़ते हो? क्या बात. ये तो तुम करोगे ही, पढ़ाई तो तुमको करना ही है ना. सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया ओनली, है ना. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया. आर वुमेन सेफ इन इंडिया बेस्ड ऑन डेटा, based on data, है ना. we are not going to do political debate or any kind of gender based debate. we are going to see from civil services perspective how we are going to use this topic in our civil services preparation. तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं. context you all know, है ना, कि in which context we are going to discuss that topic, है ना. rape and murder of one doctor in the Kolkata, that is the context, है ना. this incident is similar to the incident in Delhi long back. 2013 was the incident in Delhi that was based on Nirbhaya rape case, and you can write the statement by Gandhi ji in your essays, in your answers, है ना. जब भी ऐसा वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड कुछ essays वगैरह आता है तो सर नोट्स बनाना है क्या करंट अफेयर्स का, है ना. ये पीडीएफ मैं दे दूंगा, आई विल गिव दैट पीडीएफ इनटू योर ग्रुप्स. उससे नोट्स बनाना है तो बिल्कुल बना लेना, है ना. बिकॉज दिस पीडीएफ इज इंपॉर्टेंट, है ना. यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और हमेशा ही ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. अगले 1-2 साल तक ये डेटाज भी सेम यूज कर सकते हो. यू आर गोइंग टू यूज सिमिलर सेट ऑफ डेटाज फॉर द नेक्स्ट 1-2 years इफ यू आर अपेयरिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन, है ना. तो यू कैन मेक नोट्स, है ना. फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेक नोट्स ऑफ दिस कोटेशन. द डे अ वुमेन कैन वॉक फ्रीली ऑन द रोड्स एट नाइट, that day we can say that India has achieved independence. समझ में आ रही बात? And that is said by Mahatma Gandhi. So this quote can be used if there is an essay related to women or even a GS paper 1 or GS paper 2 question related to women safety. समझ में आ रही बात? ठीक. ऐसा नहीं women पे कुछ भी क्वेश्चन आया हम यही कोट डाल रहे हैं, फिर तो अंडा मिलेगा मार्क्स में. समझ में आ रही बात, है ना. So there are too many quotes, too many quotations related to women, है ना. अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग कोटेशन वी आर गोइंग टू यूज, नॉट द सेम कोटेशन. क्राइम अगेंस्ट वुमेन फ्रॉम वुम्ब टू टुम्ब. जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो वुम्ब से स्टार्ट हो जाता है और टुम्ब तक जाता है. इट्स नॉट लाइक वुमेन आर सेफ. वुमेन आर नॉट सेफ इवन इन द वुम्ब और इवन आफ्टर डेथ. Even after death there have been incidences that some dead body have been evacuated and raped again, है ना. So women are not safe from womb to tomb and the problem continues from womb to tomb. From womb to tomb these are the crimes against women. When
दे वुमेन इज इन द फॉर्म ऑफ फीटस, है ना। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड का नाम सुना है आप लोगों ने, हिंदी में बोलते हैं भ्रूण हत्या, इंग्लिश वी कॉल इट फीमेल इन्फेंटिसाइड, है ना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड। डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू सन मेटा प्रेफरेंस। व्हाट इज सन मेटा प्रेफरेंस? द पेरेंट्स हैव अ प्रेफरेंस ऑफ सन, है ना। तो इफ द बॉय इज बोर्न एट द लास्ट एज अ लास्ट बोर्न बेबी in a family, that is son meta preference. समझ में आ रही बात? After 3 girls there is 1 boy, that's it. So obviously the parents are trying for 1 boy. After 4 girls there is 1 boy, that's it. There is 1 boy, then 3 girls, फिर 1 boy. Are you getting my point? है ना? That is called son meta preference. Son meta preference. At last they are searching for son. That means the girls born before those son were not preferred, है ना, they were born just like that, है ना, they were not planned, not preferred. तो ये जो phenomena है that is also based on patriarchy only, and the root cause is patriarchy. समझ में आ रही बात? ठीक है, but we can write these problems. एग्जाम में आए what are the problems women face, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे ये फीटस, चाइल्डहुड, एडल्टहुड और एल्डरली बना के लिख सकते हैं इन द सिमिलर वे। आ रही बात समझ में? ठीक है। इन द चाइल्डहुड ऑब्वियसली देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड मैरिज, एंड नाउ अ डेज देर इज प्रॉब्लम ऑफ ऑनलाइन अब्यूज, ठीक है, सच एज सुली डील्स। सुली डील्स आर देयर इन हैदराबाद एंड ऑल, कि चिल्ड्रन को, गर्ल्स चिल्ड्रन को बेच दिया जाता है, वो लोग सऊदी अरेबिया एंड यूएई कंट्रीज में, है ना। The rich persons are buying the teenager or even girls of very younger age, 7 year, 8 year, 10 year, and they are taking them away with them, है ना। तो that is Sully deals. Boys locker room incidents हुआ था 1-2 years ago, है ना। Do you remember that? 2-3 years ago, similarly, there was a group, WhatsApp group of boys in a school called Boys Locker Room. They used to share the pornography of their friends, है ना। जेंडर डिस्पैरिटीज इन गर्ल्स एजुकेशन दैट दे ऑल फेस इन चाइल्डहुड, इवन इन द टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो गर्ल्स चाइल्ड फेस डिस्क्रिमिनेशन। कैसे? जो खासकर लोअर इनकम वाले फैमिलीज हैं, जिन फैमिलीज में इनकम कम है ना, सो दे फीड देयर सन अर्लियर, पहले अपने सन को फीड करेंगे, कुछ बच जाएगा, देन द गर्ल्स आर फेड। समझ में आ रही बात? एंड गर्ल्स आर फेड कंपैरेटिवली लेस न्यूट्रिशियस फूड, क्योंकि पैसे ही नहीं है। ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड अगर अंडा, फिश, मिल्क वगैरह कुछ खिलाना था तो बेटे को खिला दिया, खत्म हो गया, ठीक है। दिस काइंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आई हैव सीन इन माई विलेजेस, एंड ऑब्वियसली दे जस्टिफाई दैट ऑल्सो कि हाँ उसको बाहर जाके खेत में काम करना है या पढ़ना है, यू तुमको तो घर पे ही कन्फाइंड रहना है, तो घर पे ही कन्फाइंड रहना ही इज अगेन पैट्रियार्की ओनली। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो दैट इज द प्रॉब्लम दे फेस इन द चाइल्डहुड। फिर एडल्टहुड में आ जाओ। एडल्टहुड में देयर इज डोमेस्टिक वायलेंस, है ना, in their family, even if they are not married, sometime they are beaten by their dad and their elder brothers and even younger brothers, ठीक है। Have you seen in villages or somewhere a 15 year 16 years girl is accompanied by 8 year boy? एक 15 साल की लड़की को 8 साल के लड़के के साथ भेज देते हैं कि जाओ ये तुम्हारी रक्षा करेगा। अरे ये अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा, तुम्हारी कैसे करेगा, है ना। दैट इज अगेन द माइंडसेट ऑफ पैट्रियार्की, है ना। साइकोलॉजिकली वी आर डिमीनिंग दैट गर्ल, और वो बचपन से वो दिमाग में बैठते जाता है कि आई नीड समवन टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। समझ में आई बात? एंड द बॉय का ईगो जो है बूस्ट हो रहा है बचपन से कि आई एम द प्रोटेक्टर, आई एम द प्रोवाइडर, ठीक है। दैट इज ऑल बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, है ना। देयर इज नो सच थिंग इन द वर्ल्ड कि वो प्रोटेक्ट अपने आप को नहीं कर पाएगी। अगर मान लो कुछ ऐसा होता है तो अपने भाई को प्रोटेक्ट करते रह जाएगी, अकेले होती तो भाग भी जाती, ठीक है। सो दीज आर ऑल दैट थिंग। एडल्टहुड में डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। आज टुडे वी वांट कि लड़कियां जो है काम पे जाए, है ना,
काम करने जाएं, बाहर जाएं, पढ़ने जाएं, वर्क करने जाएं, बट काम करने जाने से पहले भात दाल बना के जाएं, है ना। तो नाउ दे हैव डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव बर्डन ऑफ द हाउसेस, एट द सेम टाइम दे आर वर्किंग आउटसाइड ऑल्सो। समझ में आ रही बात? तो दे आर फेसिंग डबल बर्डन। सेक्सुअल वायलेंस लाइक रेप्स एंड असॉल्ट ऑन मॉडेस्टी, एडल्टहुड में ये सारी चीजें हो रही होती हैं, किडनैपिंग, एबडक्शन एंड इवन ऑनर किलिंग। व्हाट इज ऑनर किलिंग? ऑनर किलिंग, इफ अ गर्ल ऑफ वन कम्युनिटी इज मैरिंग अ बॉय ऑफ अदर कम्युनिटी, है ना, द कम्युनिटी ऑफ द गर्ल किल्स द गर्ल, कि नहीं नहीं इसने दूसरे कम्युनिटी में शादी कर लिया तो हमारे कम्युनिटी का जो ऑनर है वो खराब हो गया है। समझ में आ रही बात? दैट इज लाइक डिसऑनरिंग आवर कम्युनिटी। दैट इज वेरी प्रिवेलेंट इन हरियाणा। हरियाणा का नाम सुना है आप लोगों ने, है ना? इन हरियाणा देयर आर खाप पंचायत, नाम सुना है तुम लोगों ने, है ना? विच काइंड ऑफ पंचायत? खाप पंचायत। एंड इन खाप पंचायत they do not prefer love marriages, they do not prefer intercaste marriages, they do not prefer marriages in the same गोत्रा, है ना? गोत्रा मतलब गोत्रा एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? दो कंप्लीटली डिफरेंट लोग अलग अलग रहने वाले सेम गोत्रा के भी हो सकते हैं, बट सेम गोत्रा आर कंसिडर्ड एज सेम ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है? तो इवन दे किल देम ऑल्सो, इवन दे आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ ईच अदर, बहुत अलग अलग फैमिलीज में बहुत अलग अलग तरीके से बड़े हुए हैं। एंड वंस दे बिकम एल्डरली, एडल्टहुड में और भी प्रॉब्लम्स है ना? इट्स नॉट लाइक द प्रॉब्लम्स आर वेरी लिमिटेड, आई हैव गिवन ओनली फ्यू प्रॉब्लम्स हियर। एडल्टहुड में, एल्डरली में लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, साइकोलॉजिकल इलनेस, है ना, अलग से छोड़ दिया जाता है कि एक कमरे में रहो, थेफ्ट एंड किलिंग ऑफ एल्डरली वुमेन, ये भी चीजें हो जाता है, ठीक है? आइसोलेशन, आइसोलेशन में रख दिया जाता है उनको, ठीक है? इनफैक्ट जो मेरी लैंडलॉर्ड है यहाँ पे इन गुवाहाटी, ठीक है, हर हस्बैंड डाइड इन 2021, हर हस्बैंड डाइड इन 2021 ड्यू टू कोविड, एंड हर हस्बैंड वाज अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर, सम ऑफ यू माइट बी नोइंग इफ you belong to the Guwahati, and she has one son who is in some authority working in IIT Guwahati or somewhere, है ना? But for the last 2-3 years the son was not meeting her and she was psychologically ill. Obviously her husband left her and मतलब husband का death हो गया और बेटे और बहू कुछ देख ही नहीं रहे उनको, है ना? ठीक है, तो जो भी वो हाउस हेल्प रख रही हैं वो सामान चुरा के भाग जा रहा है, मार के भाग जा रहा है। सो दिस काइंड ऑफ अकरेंसेज वेर वेरी प्रीवेलेंट विथ हर। सो एट लास्ट शी स्टार्टेड डोनेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉट एवर एक्वायर्ड बाई हर एंड हर हस्बैंड, ठीक है? तो उसके बाद बेटा आ गया। समझ में आ रही बात ना? इवन इन द हाउस वेयर आई एम रिसाइडिंग नाउ, she is coming to live there because she has donated her own house. समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इवन प्रॉब्लम विथ एल्डरलीज आर इवन देयर इन गुवाहाटी ऑल्सो, इट्स नॉट लाइक। और हमेशा देखोगे कि कई बार एल्डरली कपल एक साथ रह रहा है या सिर्फ एक मेल एक फीमेल एक जगह रह रहा है, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे यूएस में हैं, कनाडा में हैं, दिल्ली में हैं, बेंगलोर में, गुवाहाटी में होके भी अलग रह रहे हैं। These kind of problems are very prevalent with elderly and in particular elderly women. समझ में आ रही बात? ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सर हमारे घर पे उल्टा है, फर्स्ट सन देन 3 गर्ल्स। चलो ये अच्छा है, किसी ने तो सन मेटा प्रेफरेंस तोड़ा, है ना? ठीक है, देन 3 गर्ल्स, बट सिंस देयर वाज 1 सन nobody tried after that, है ना? अदरवाइज आफ्टर 3, 4, 5 यू माइट हैव गॉट 1 सन। जहांगीर हसन, वुमेन आर नॉट सेफ इन द यूनिवर्स। फिर कहाँ है? तुम ले जाओ उनको किसी दूसरे यूनिवर्स में यार। सर नोट्स बनाना है क्या? हाँ नोट्स तो बनाना है। प्रीलिम्स और मेंस, देयर विल बी सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रीलिम्स ऑल्सो, बट मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट आर रिलेटेड टू मेंस ओनली, है ना? प्रीलिम्स में कौन सा तुमको पूछ रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है? समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं। दिस इज द रिपोर्ट ऑफ एनसीआरबी। व्हाट इज एनसीआरबी? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। बोलो, नेशनल
क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 रिपोर्ट डेटा रिलेटेड टू क्राइम अगेंस्ट विमेन, वुमेन के रिलेटेड जो भी क्राइम हुआ है 2023 में, है ना, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन 2024. फर्स्ट, इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन. 4% increase in crime against women have been reported compared to 2022 to 2023. There is a how much percent increase? 4%. The real data is not very important. इतना रट के क्या होगा? 4% increase याद रख लो. That is fine for your mains examination. ठीक है? Next, second, crime against women. The most prevalent types of crime reported include. देखो पीछे तक नहीं भी दिखेगा तो do not worry, that PDF will be given. उसके बाद नोट्स बना सकते हो, दोबारा भी रिवाइज करने का मौका मिलेगा. ठीक है, तो अभी रुक जाइए, समझिए, है ना. अगर नहीं दिख रहा है डोंट वरी, मैं पढ़ के बताऊंगा. क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव, 31% वुमेन ने ऐसे केस दर्ज कराए हैं, है ना. 31% वुमेन हैव gone to the police station and recorded the case that there is cruelty on her because of her husband or the relatives of the husband like father, mother and whatsoever. Second, kidnapping and abduction of women is 19% cases. Assault on women with intent of outrage her modesty is 18.7% and 7% incidences of rape. That is crime against women in 2023. समझ में आ रही बात. तो you can write all these data in the examination. ABCD करके भी लिख सकते हो. Women safety indices. There are also women safety index. अलग अलग एजेंसीज होती हैं, अलग अलग इंडेक्सेस निकालते हैं, है ना. तो देर इज वन एजेंसी और उस एजेंसी ने निकाला है. एजेंसी का नाम है अकॉर्डिंग टू वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2023. इंडिया रैंक्स 128th आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? 177 in terms of women safety. The index score for India is 0.58 which is just above 0.5, है ना. 1 के आसपास होगा तो वुमेन आर मोर सेफर. समझ में आ रही बात. तो हमारा स्कोर काफी खराब है. ठीक है. देर इज वन सर्वे कॉल्ड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, है ना. ये इंडियन गवर्नमेंट ही कराती है. नेशनल फैमिली हेल्थ. फैमिली हेल्थ कैसा है? दैट इज प्राइमरली रिलेटेड टू हेल्थ, बट इसने ये भी बताया है इंडिया में वुमेन 15 से 49 ईयर्स की वुमेन में कम से कम 30% वुमेन ने डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल सेक्सुअल वायलेंस फेस किया है. समझ में आ रही बात, है ना. कम से कम हाउ मच परसेंटेज? 30%. दैट इज 1/3. 1/3 of the women have faced this kind of problems in their houses itself. Women safety indices. Reason behind lack of women safety in India. First is prevalence of patriarchy. Patriarchy we understood already, है ना. What is patriarchy? A social system ruled by or made by men only for the benefit of men, where decision makers are men. ठीक है, that is called patriarchal system. मेल डोमिनेशन. फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टेटमेंट आते हैं नेताओं के, प्रीवेलेंस ऑफ लड़का है, गलती हो ही जाती है, माइंडसेट, है ना. देयर वाज वन इंसिडेंस फ्यू ईयर्स अगो, 7-8 ईयर्स अगो और 6-7 ईयर्स अगो इन यूपी, है ना. इंसिडेंट्स ऑफ रेप बाय द ऑब्वियसली बॉयज एंड द सुप्रीम लीडर ऑफ यूपी एट दैट टाइम जो भी थे, है ना, he died, है ना, नेचुरल डेथ ओनली. सो ही इज लाइक लड़के हैं, गलती हो ही जाती है. बट इफ दिस काइंड ऑफ माइंडसेट इज देयर, दैट रिफ्लेक्ट्स द पैट्रियार्कल माइंडसेट. कैसे गलती हो जाती है भाई? सेकंड इज ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन बाय आवर मूवीज, बाय OTT प्लेटफॉर्म्स, है ना. इनका क्या जरूरत है मूवीज में? बताओ क्या वैल्यू ऐड करते हैं ये, क्या कहानी में रख लेके आते हैं? ठीक है, इन लोगों को कोई जरूरत है? नोरा फतेही की कोई जरूरत है मूवीज में? कोई जरूरत नहीं. दैट इज ऑल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ women. समझ में आ रही बात? दैट इम्पैक्ट्स द माइंडसेट. और जो फील कराते हैं कि वुमेन शुड बी ऑब्जेक्टिफाइड ओनली, वुमेन हैव दिस काइंड ऑफ रोल ओनली. तो इससे हैरेसमेंट और बाकी चीजें बढ़ती हैं. थर्ड, इनएडिक्वेट सेफ्टी इन पब्लिक प्लेसेस. दैट हॉस्पिटल वाज ऑल्सो अ पब्लिक प्लेस. देयर वाज इनएडिक्वेट सेफ्टी इन गली मोहल्ला एंड स्ट्रीट्स. Everywhere there is inadequate lighting, inadequate CCTVs,
है ना, इनएडिक्वेट और लैक ऑफ पुलिस फोर्स, लैक ऑफ नाइट मतलब क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोलर, नाइट पेट्रोलर जो कि पुलिस फोर्स है, उन सबका क्या है, कमी है. निर्भया रेप happened because of that. Even the Kolkata incident happened because of that. Lack of inadequate safety in public spaces. Economic dependency, that is biggest, है ना, that is biggest economic dependency. Women are economically dependent on men, patriarchally, है ना. तो वुमेन को प्रिपेयर कराना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए. Since they are economically dependent, sometimes they even digest the domestic violence kind of incidents, है ना. Even their elder mothers and all, वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ ये तो थोड़ा बहुत तो हस्बैंड लोग करते ही हैं, थोड़ा मार खा लो क्या हो जाएगा, ठीक है, हमने तो बहुत मार खाया है, ठीक है. This kind of incidences are there. So because of economic dependency, if there will be no economic dependency, the incidences of domestic violence will likely to decrease, है ना. तो economic independence of girls is very very important. So if you are preparing for APSC, obviously you are trying to be a civil servant. If you are preparing for UPSC, you are trying to be a civil servant. Be a civil servant, that is good, है ना. You have power, you have money, you have economic independence. But if even you could not become a civil servant, you should be economically independent. That is must considering today's scenario, है ना. It's not like कि दूसरा साइड अकर नहीं करता है ना. We are not talking about the other side today, है ना. There is other side also. 2-3 days back there was one news from Karnataka that one woman is demanding 6 lakh per month as alimony from her husband. तो जज ने बोला तो 6 लाख पर मंथ चाहिए तो खुद कमाओ, खुद क्यों नहीं कमा रही हो, इतना पैसा क्यों चाहिए तुम्हें एलिमनी के नाम पे. समझ में आई बात. देयर आर अदर साइड आल्सो, बट टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वुमेन सेफ्टी इन इंडिया. नौगांव धिंग केस, बिल्कुल हाथरस केस, देयर आर सो मेनी केसेस, ठीक है. मतलब दैट इज मस्ट. कल्चरल स्टिग्मा, समटाइम्स इवन इफ द girl child is abused, girl child are generally abused by someone known, कोई मामा चाचा दूर का रिश्तेदार, that abuses the girl child, and जो उनके पेरेंट्स होते हैं they do not go to the police because of the stigma attached, है ना, कि बचपन से ही स्टिग्मा अटैच हो जाएगा उस गर्ल चाइल्ड पे कि इसका मोलेस्टेशन हुआ है या रेप का ट्राई हुआ है या रेप हुआ है. दैट्स वाई दे डू नॉट गो टू द पुलिस, है ना. तो बिकॉज ऑफ दैट स्टिग्मा, ठीक है. तो दैट इज ऑल्सो कल्चरल स्टिग्मा. ब्रशिंग ऑफ द चाइल्ड मोलेस्टेशन इशू अंडर द कारपेट बिकॉज ऑफ दैट. लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, है ना. देर आर सो मेनी लॉज मेड टू प्रोटेक्ट द वुमेन regarding dowry, regarding domestic protection and so many, but generally in rural women they are not very aware of those laws. तो laws का awareness नहीं है कि they can also file a case, and empowerment नहीं है. because of that also there is the problem. nowadays there is a problem of cyber bullying, है ना. cyber bully, ठीक है, फोटो वायरल कर देंगे AI से, AI लगा के फोटो को और खराब कर देंगे तब वायरल कर देंगे. देर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है, सो मेनी थिंग्स. साइबर बुलिंग, इट्स नॉट लाइक देर आर ओनली 7 रीजन, देयर कैन बी न्यूमरस रीजन रिगार्डिंग टू द वुमेन. मैं आपको बताता हूँ, इनफैक्ट टिल 1980s, है ना, एयर इंडिया जो है वो मैरिड वुमेन को हायर नहीं करता था, बट दैट इज अ गवर्नमेंट कंपनी. समझ में, दैट वाज अ गवर्नमेंट एयरलाइंस एयर इंडिया, है ना. जो IFS ऑफिसर है, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, उनको शादी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लगती थी अगर वो गर्ल हैं, है ना. दैट यूज्ड टू बी देयर इन इंडिया. देयर वाज सो मच, है ना, लेस इक्वालिटी टू प्रोवाइडेड टू वुमेन इनिशियली. तो ये सारी चीजें आती गई हैं. इनफैक्ट वुमेन को इक्वल राइट्स टू वोट भी नहीं हुआ करता था. इंडिया में तो आज़ादी से है. 1890 न्यूजीलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू गिव इक्वल राइट्स ऑफ वोट टू वुमेन. वर्क प्लेस हरासमेंट, उस पर तो आएंगे अभी. लैक ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल करिकुलम, बिल्कुल. देर आर सो मेनी रीजन्स. आई हैव ओनली गिवन फ्यू रीजन्स, फ्यू इंपॉर्टेंट रीजन. समझ में आ रही बात? क्योंकि रीजन बताते बताते 50 रीजन हो जाएंगे, है ना. रीजन्स की कमी थोड़ी है.
इन एग्जाम टाइम में व्हेन एवर यू विल बी स्टडिंग सोशल जस्टिस और इंडियन सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, तो जो भी सर आपको पढ़ाएंगे तो आपको कैटेगराइज पढ़ के पढ़ाएंगे, है ना. रीजन्स, देर आर इकोनॉमिक रीजन्स, देर आर सोशल रीजन्स, देर आर साइकोलॉजिकल रीजन्स. आ रही बात समझ में? देर आर लीगल रीजन्स एंड ऑल दोज लीगल रीजन्स विल बी क्लब्ड अंडर दोज रीजन्स. समझ में आ रही बात? ऐसे स्ट्रक्चर करके पढ़ाया जाएगा. चलो नेक्स्ट, legal protection. What legal protection government has given to the women in India? Let's see. Legal protection means law to protect the girls and women. There are so many laws, but we are not going to discuss each and every law. But each and every law यहाँ पे लिखा हुआ है ना. I am just going to state that against child violence there is prohibition of child marriage act, that the child marriage should not take place, है ना. that is there for both the gender, है ना. मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है, बट फीमेल को भी तो प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. ठीक. सेकंड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015. जुवेनाइल किसको बोलते हैं? टीनेजर, 18 से नीचे वाले को, है ना. टीनेजर जो 18 से नीचे है उनको क्या बोलते हैं? जुवेनाइल बोलते हैं. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इसको पॉक्सो बोलते हैं. नाम सुना है कभी? POCSO एक्ट, पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस. मतलब अगर चिल्ड्रन का सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो ऐसा करने वाले को क्या हो जाता है? जेल होगा. ठीक है. और इस पे ज्यादा इंस्ट्रिंजेंट प्रोविजन लागू होगा. अगेंस्ट ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन देयर इज ऑल्सो अ लॉ, बट पता नहीं ये लोग फॉलो क्यों नहीं करते हैं, अल्ट बालाजी वाले. इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986. अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस देयर आर सो मेनी लॉज. सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट. दिस एक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन डिटेल, है ना. ये डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्रिमिनल लॉज, देयर आर अदर क्रिमिनल लॉज. देयर इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, देयर इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, है ना. तो ये सारे एक्ट जो हैं इसमें से 3-4 एक्ट विल बी डिस्कस्ड एट डिफरेंट इंस्टेंसेस. जब चिल्ड्रन के बारे में पढ़ रहे होगे तो ये सारी एक्ट यहाँ पे चिल्ड्रन में डिस्कस कर दिए जाएंगे. ठीक है. जब वुमेन के बारे में पढ़ रहे होगे हो सकता है ये सारे एक्ट्स डिस्कस कर दिए जाएं. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन एक्ट, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. दैट हॉस्पिटल वाक द वर्क प्लेस फॉर दैट डॉक्टर, है ना. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एक्ट, है ना. इसका पूरा नाम क्या, शॉर्ट फॉर्म क्या बोल सकते हैं हम लोग? पोश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट. ठीक है. तो पूरा नाम क्या है? सेक्सुअल प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट. जो कब पास हुआ है? 2013 में पास हुआ है. इवन द ईयर कैन बी आस्क्ड और यू कैन राइट द ईयर इन द एग्जामिनेशन. अच्छा मेरी एक बात सुनो, इंडिया में लॉ कौन पास करता है? हु पासेस द लॉ? बोलो. Even if you have studied little bit of polity, you might be knowing. If you do not know, let me just tell you. Indian Constitution पता है ना? Have you heard about something called Parliament? Have you heard about something called state legislature? They make the laws. State legislature law बनाएगा तो किसके लिए बनाएगा? State के लिए. Parliament law बनाएगा तो किसके लिए बनाएगा? पूरी country के लिए बनाएगा. समझ में आई बात? तो ये लॉ किसके लिए बनाया? पूरी कंट्री के लिए बना है. मेड बाय द पार्लियामेंट व्हेन इन 2013. पार्लियामेंट, रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू मेक लॉ, रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू इंप्लीमेंट लॉ एंड रोल ऑफ जुडिशरी इज टू प्रोवाइड जस्टिस बेस्ड ऑन दोज लॉ. समझ में आई बात? फिर से बोलो. रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू मेक लॉ, रोल ऑफ मिनिस्ट्री एंड एग्जीक्यूटिव इज टू इंप्लीमेंट लॉ, रोल ऑफ जुडिशरी इज टू गिव जस्टिस बेस्ड ऑन दीज लॉ. समझ में आ रही बात? ठीक. तो ये लॉ तो बना, बट लॉ कैसे बना? लॉ वाज बेस्ड ऑन विशाखा गाइडलाइंस. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज विशाखा गाइडलाइंस, है ना. इन 1990s देयर वाज अ प्लेस, है ना, इन जयपुर, नियर जयपुर, इन Rajasthan, where an NGO was working,
and in NGO there was one woman called Bhaumri Devi, and the name of the woman was Bhaumri Devi. She was working to prevent the child marriage, and she was making the people aware about the child marriage, कि चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट कर देना है, चाइल्ड मैरिज नहीं होने देना है. बट पीपल देयर स्टार्टेड असॉल्टिंग हर बिकॉज दे बिलीव्ड इन चाइल्ड मैरिज, है ना. इन पर्टिकुलर मेन स्टार्टेड असॉल्टिंग हर बिकॉज दे बिलीव्ड इन चाइल्ड मैरिज, इवन दे रेप्ड हर, एंड दैट वाज द केस ऑफ भौरी देवी. द केस ऑफ भौरी देवी फर्स्ट वेंट इनटू जयपुर हाई कोर्ट, वहाँ पे उसकी सुनवाई हुई. देन इट वेंट इनटू सुप्रीम कोर्ट, है ना. कुछ खास लीगल रेमेडी नहीं मिल रहा था बिकॉज भौरी देवी वाज वर्किंग समवेयर एंड सी वाज वर्किंग इन सम कैपेसिटी, एनजीओ की कैपेसिटी में ही या किस कैपेसिटी में, ठीक है. तो बहुत सारे एनजीओ ने मिलके सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया, उसको बोलते हैं PIL. क्या बोलते हैं? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. लिटिगेशन मीन्स केस ओनली, केस विच इज ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, है ना. तो दैट PIL was filed and one of the NGO who filed the case was, the name of that NGO is विशाखा, है ना. एंड सुप्रीम कोर्ट गेव द जजमेंट, जिनको सजा मिलनी थी वो तो मिली ही, बट जस्ट द पनिशमेंट इज नॉट इनफ. आफ्टर द पनिशमेंट देयर इज सम प्रोटेक्शन नीडेड एट द वर्क प्लेसेस फॉर द वुमेन. तो सुप्रीम कोर्ट गेव सम गाइडलाइन कि एट द वर्क प्लेस क्या क्या गाइडलाइन होना चाहिए टू प्रोटेक्ट द वुमेन, टू प्रोहिबिट एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस रिलेटेड टू देम. दैट इज कॉल्ड विशाखा गाइडलाइन. समझ में आ रही बात? ठीक है. क्या क्या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि विशाखा गाइडलाइन के बाद से अलग से बाद में क्या बन गया? लॉ बन गया. दैट इज वाई इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से सुनो, रुक जाओ. देखो, थोड़ा सा हम लोग पॉलिटी समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ पॉलिटी ऑल्सो हियर, है ना. In our polity, the state is divided into three parts, है ना. One is called legislature. Legislature is parliament, parliament and state legislature. इनका काम क्या है? लॉ बनाना. बोलो क्या काम है? लॉ बनाना. लॉ बनाते हैं ये लोग, पार्लियामेंट में हल्ला करते रहते हैं, देखा नहीं है सब लोगों को? लॉ बनाते वैसे ही लॉ बन गया, ठीक है. द सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव, है ना. इन नो वे आई एम डिसरिगार्डिंग माई MPs, है ना. आई एम जस्ट ट्राइंग टू थोड़ा तुमको इंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. एग्जीक्यूटिव्स में कौन आ जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर वगैरह लोग आ जाएंगे, मिनिस्टर्स लोग आ जाएंगे. इन एग्जीक्यूटिव्स देयर आर ऑल्सो सिविल सर्वेंट. सिविल सर्वेंट भी किस में आएंगे? एग्जीक्यूटिव्स में. यू आर द वन हु विल एग्जीक्यूट दोज लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. समझ में आ रही बात, है ना. फाइनली किसके पास जाएगा ये? बोलो बोलो. फाइनली किसके पास जाएगा? जुडिशरी के पास. तो लॉ मेकिंग, लॉ इम्प्लीमेंटेशन, लॉ इम्प्लीमेंटेशन. और इनका काम क्या है? बोलो. सिर्फ जस्टिस देना. उसको बोलते हैं लॉ एडजुडिकेशन, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? ध्यान से सुनो 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 सुनो. सुप्रीम कोर्ट गेव विशाखा गाइडलाइंस. सुप्रीम कोर्ट इन हर जजमेंट गेव विशाखा गाइडलाइंस. विशाखा गाइडलाइंस which means what are the necessities or necessary steps to be taken at the workplaces. कि एक वर्क प्लेस पे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं आगे से. बट एक वर्क प्लेस पे क्या क्या स्टेप लेने हैं, ये लॉ हो गया. क्या हो गया? लॉ. ये एक्चुअल काम किसका है? लेजिस्लेचर का, है ना. लॉ पे डिसीजन देना कि देखो इसको सजा दे दो, फांसी दे दो, इसको छोड़ दो, ये सब किसका काम है? जुडिशरी का. समझ में आई बात? तो इस इंसिडेंस को जहां पे जुडिशरी इन दोनों का भी काम करने लग जाता है, उसको जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना. तो व्हेनेवर यू विल बी स्टडिंग अबाउट जुडिशरी,
है ना, आशीर्वाद सर विल टीच यू व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना, ऑल्दो दे आर कन्फाइंड इनटू देयर ओन रोल, but sometimes judiciary feels necessary to intervene in their role. That means judiciary has become more active, and that is judicial activism. Are you understanding? समझ में आ रही बात? पक्का आ रही है? Okay. तो विशाखा गाइडलाइन वाज एन एक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. लोग उसको पसंद करते हैं तो जुडिशियल एक्टिविज्म, लोग नहीं पसंद करें तो कुछ और भी बोलेंगे, बट उसको छोड़ देते हैं. ठीक है, दैट इज पॉलिटी में आप समझिएगा, है ना. चलिए वापस आइए, वापस. तो भंवरी देवी, अ सोशल वर्कर फ्रॉम राजस्थान, है ना, गैंग रेप्ड इन 1992. शी वाज प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज. उस समय कोई लीगल ऐसा कुछ लॉ नहीं था रिगार्डिंग एड्रेसिंग सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज फाइल्ड, and litigation was filed by so many organization. One of such organization was your Vishakha, है ना. तो विशाखा ऑर्गेनाइजेशन के बाद से in 1997 Supreme Court gave the judgment, and Supreme Court also gave the guideline issued by the Supreme Court. इसी गाइडलाइन को क्या बोलते हैं? विशाखा गाइडलाइंस. अभी गाइडलाइन रटना नहीं है, we do not have to mug up the guideline, we just need to know there was some विशाखा गाइडलाइन. वाई वी डिड नॉट नीड टू नो? क्योंकि बाद में लॉ तो बन ही गया ना इन 2013, तो वी विल बी रिमेम्बरिंग दैट लॉ. समझ में आ रही बात? वी डू नॉट नीड दोस गाइडलाइंस. व्हाट वाज द गाइडलाइन? डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. सेक्सुअल हरासमेंट क्या होगा वो डिटेल में बताया सुप्रीम कोर्ट ने, हमने नहीं लिखा, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है. प्रिवेंटिव स्टेप्स, किसी वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया. Establishment of complaint committee, what kind of complaint committee needed to be made as any workplace. At workplaces there should be some complaint committee. If any women feel harassed, they can complain to that complaint committee. ठीक है. Mechanism of redressal of the grievances, awareness and training of everyone joining that organization, that in which way you are going to behave with the women. ठीक है, तो ये सारा गाइडलाइन दिया, और बहुत दिन तक इस पे कोई लॉ नहीं बना, बट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दिया था, तो ये गाइडलाइन क्या था उस समय पे? बाइंडिंग था. दैट मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीडेड टू फॉलो द सुप्रीम कोर्ट विशाखा गाइडलाइंस. समझ में आ रही बात? लेटर ऑन द लॉ वाज मेड इन 2013. इन शॉर्ट वी कॉल इट अ पोश एक्ट. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट? अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे. ठीक है, इसके पहले तक कुछ डाउट है अगर आपको तो पूछ लीजिए, देन वी आर गोइंग टू सी दैट इन डिटेल. व्हाट इज पोश एक्ट, है ना. इन एग्जामिनेशन डायरेक्टली पोश एक्ट कैन कम, बिकॉज वी आर ऑलरेडी डीलिंग विद द कोलकाता इंसिडेंट्स, है ना. तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है? पोश एक्ट बनता है. समझ में आ रही बात? विच इज रिलेटेड टू आवर सिलेबस. ठीक है, बोलो. द बैक बेंचर, कैसे हो? ठीक हो तुम लोग? अच्छा, समझ में आ रहा है? अच्छा, लास्ट बेंच एकदम पीछे. हाँ, ठीक हो? अच्छा, तुम्हारी एक फोटो ले लें क्या? छोड़ो, अभी नहीं लेते. अभी आज तुम लोग अच्छे नहीं लग रहे, नहा के नहीं आए. लेजिस्लेचर इन केस ऑफ यूनियन लेवल द पार्लियामेंट. चलो ठीक है, ये लोग बता रहे थे ऑनलाइन स्टूडेंट. अब नाउ देखो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोश एक्ट. पोश मतलब वही प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट. ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. तो कोई भी एक्ट होता है तो उसमें 20, 15, 25 पेज हो सकते हैं.
तो all that 20-25 pages are not important for our exam. We have summarized it कि एग्जाम के लिए क्या नेसेसरी हो सकता है। इवन इस पीडीएफ में जो भी चीजें होंगी वो भी पूरी याद करनी नहीं है, बट आई हैव गिवन इट ऑल कि कोई एक्ट कैसे बनता है। समझ में आ रही बात है ना? आफ्टर सम टाइम यू विल बी सिविल सर्वेंट, 1 ही साल के बाद बन जाओगे। अब बन जाओगे, कोई एक्ट आया तो पढ़ना तो आना चाहिए ना कि एक्ट में क्या क्या चीजें होगा और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, व्हाट ऑल शुड बी देयर इन द एक्ट। तो पोस्ट एक्ट फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो सेक्सुअल हरासमेंट बोलेंगे किसको? ये डेफिनेशन दिया गया एक्ट में। द एक्ट डिफाइंस सेक्सुअल हरासमेंट इन अ ब्रॉड मैनर। विच मैनर? ब्रॉड। फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस विल बी कॉल्ड एज सेक्सुअल हरासमेंट। A demand or request for sexual favor will be called as sexual harassment. Making sexually colored remark, है ना, कि बहुत सेक्सी लग रही हो, that will be also called as sexual harassment. Showing pornography, any other unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct of sexual nature will be called as sexual harassment. तो sexual harassment का broad definition दिया गया है, that all at any workplace will make sexual harassment. इसमें से कुछ भी ऐसा होता है that amounts to sexual harassment. Second, what is the scope of the act? The act applies to both the organized and unorganized sector, है ना? Even if any sector is unorganized, कोई ऑफिस नहीं है, 10 लोग कहीं से भी बैठ जाते हैं, there also the act will apply. It's not like कि नहीं वहाँ तो सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, रोड बनाते हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि at construction site the act will not apply. The act will apply there also, है ना, because women are working there also. It covers all women. All women, ध्यान सुनना, regardless of their age or employment status, whether working as regular employee, temporary employee, intern or even बोलो visitors. It covers even visitors. The workplace is defined broadly to include not just traditional office but also places visited by the employee during the course of employment, including transportation. Transportation को भी किस में लिया जाएगा? Workplace में, है ना? If any company is providing you with transportation, a cab in which 4-5 persons are traveling, 2-3 persons are traveling, that also includes your workplace. समझ में आई बात? The definition is very broad. Definition में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, तुम्हारे जैसा ही कोई सिविल सर्वेंट सोच के बनाया होगा ना, उसी को डिस्कस किया गया होगा कहाँ पे? पार्लियामेंट में, फिर उस पर क्या बना होगा? लॉ बना होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। क्या ये सब रटना है? क्या सबका नोट्स बनाना है? नहीं, ठीक है। डेफिनेशंस का थोड़ा मतलब पता होना चाहिए। स्कोप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, देयर शुड बी एन इंटरनल कंप्लेंट कमिटी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज मोर देन 10 एम्प्लॉय, then it should have an internal complaint committee where the women can complain. Every employer with 10 or more employees must constitute an internal complaint committee at each office or branch. Each office, it's not like यहाँ बना दिए तो वहाँ नहीं बनाएंगे. If there are 2 centers, 2 offices, that internal complaint committee will be at both the center. यहाँ अगर किसी का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, बोलो कि नहीं दूसरे ब्रांच में, हेड ब्रांच में जाके कंप्लेन करो, है ना? तो आई थिंक वी आर डिनाइंग द जस्टिस। समझ में आ रही बात? डिनाइंग द इक्वलिटी. द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी मस्ट इंक्लूड अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर हु इज अ सीनियर वुमेन एम्प्लॉय. एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में जो हेड करेगा वो कौन होगा? सीनियर वुमेन पर्सन होगा, कोई एम्प्लॉय होगा, और भी लोग होंगे जिनको लीगल नॉलेज होगा, एनजीओ से भी लोग हो सकते हैं। समझ में आई बात? मतलब अभी इन इंडिया ऑल द वर्क प्लेसेस पे क्या होना चाहिए? एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होना चाहिए, है ना? इवन इफ यू आर गोइंग फॉर एनी प्राइवेट जॉब, है ना, गर्ल्स स्पेशली, आस्क देम डू यू हैव एनी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, है ना, इन अकॉर्डेंस विद द पोस्ट एक्ट और नॉट. इफ दे डू नॉट हैव, टीच देम व्हाट इज पोस्ट एक्ट एंड यू शुड हैव सम इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. अगर मेंबर 10 से कम हो, 10 से कम एम्प्लॉय हो, तो देयर विल बी लोकल कंप्लेंट कमिटी. लोकल कंप्लेंट कमिटी मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, जहाँ 3-4 लोग ही रहते हैं काम करने वाले, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वुमेन कहाँ जाएगी? दे विल गो टू द लोकल कंप्लेंट कमिटी इन द मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना.
वहां पे जा सकती हैं, वहां पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेंट प्रोसीजर इज ऑब्वियसली नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना, बट मैं थोड़ा बता देता हूँ। कंप्लेंट प्रोसीजर इज इफ देयर इज any nature of offense, the women can complain within 3 months. Who can complain? The women can themselves complain, है ना, the girls can themselves complain, and even any friend, relative or somebody related to girl can complain if the girl is giving written consent, है ना, रिटर्न में लिख के देती है तो उसके बिहाफ पे कोई और भी कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। और ये 3 महीने में, 3 महीने बहुत रिजिड नहीं है, अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी चाहती तो 3 महीने के बाद वाला केस भी ले सकती है। समझ में आ रही बात? 3 months इज नॉट दैट रिजिड, क्योंकि अगर हमने 3 months ही कर दिया तो वी हैव मेड इट रिजिड। आ रही बात समझ में? अच्छा, इतना मी टू कैंपेन्स हुआ सर, डू यू रिमेंबर दैट, है ना? मी टू कैंपेन्स आर आल्सो रिलेटेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। जो मूवीज में, जो बॉलीवुड में या कहीं भी टॉलीवुड में कहीं भी कास्टिंग काउच होता है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, है ना। अभी मैंने प्री सिक्योर में 2-3 दिन पहले एक कमिटी का जिक्र किया था, आप लोग करते हो प्री सिक्योर, वहां देखना, ठीक है। वो कमिटी भी कहाँ बनी है? केरला मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कास्टिंग काउच है वहां के लिए बनी है, ठीक। कंसिलिएशन, अच्छा कई बार ऐसा होता है कंप्लेन हो गया बट कंप्लेन फ्रीवलस था। फ्रीवलस मतलब कंप्लेन में बहुत दम नहीं था, कंप्लेन वाज सुपरफिशियल ओनली। सो कंप्लेन कैन बी विड्रॉन बाय द गर्ल और द वुमेन, दैट इज कॉल्ड कंसिलिएशन, है ना। जिसके ऊपर कंप्लेन किया है ना, दे कैन म्यूचुअली डिसाइड बिफोर इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी कि दैट कंप्लेन वापस लेना है। बट वापस लेना है उसमें कोई मॉनेटरी बेसिस नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी मॉनेटरी बेसिस। कई बार डराने के लिए कंप्लेन कर दिया, ठीक है, तो वो भी नहीं करना है। इंक्वायरी प्रोसेस, देयर विल बी इंक्वायरीज, बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज को मौका मिलेगा, है ना। द पार्टी विच इज अग्रीव्ड एंड ऑल्सो द पार्टी जिस पे एलिगेशन लगाया गया है, दोनों पार्टी को मौका मिलेगा, है ना, ठीक है। और दोनों पार्टी को मौका मिलेगा, दोनों लोग बोलेंगे अपने अपने बारे में, दैट इज नेचुरल जस्टिस। अगर सिर्फ एक पार्टी का नाम सुन के, एक पार्टी के बारे में सुन के आप डिसीजन दे देते हो, दैट इज नॉट नेचुरल जस्टिस। यू शुड बी हियरिंग बोथ द पार्टीज, है ना। डोंट बिकम अ जज जस्ट बाई लिसनिंग टू वन पार्टी। एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, है ना। अगर इंक्वायरी पेंडिंग रहेगा तो क्या करोगे? एंट्री मेजर्स होता है, ट्रांसफर द कंप्लेन, ठीक है, ग्रांटिंग लीव टू द कंप्लेनेंट, लीव दे दो, किसी को ट्रांसफर कर दो, ऐसे करके भी तब तक इंक्वायरी कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। दीज थिंग्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। पनिशमेंट मिलेगा, कंपनसेशन होगा। फॉल्स और मलिशियस कंप्लेंट नहीं करना है, ठीक है। मियर इनएबिलिटी, ठीक है, तो फॉल्स और मलिशियस कंप्लेन को बहुत ज़्यादा फेवर नहीं दिया जाएगा, यही सब। व्हाट इज द एम्प्लॉयर्स ड्यूटी? एम्प्लॉयर्स ड्यूटी इज प्रोवाइडिंग अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, displaying details of internal complaint committee member and the penal consequence of sexual harassment, organizing regular workshop, है ना। कैसा वर्कशॉप? रेगुलर, एंड अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉइज ऑन द पोस्ट एक्ट। देखो कई बार रील्स भी आ रहे होते हैं कॉर्पोरेट में, जो लोग काम कर रहे होते हैं, है ना, पोस्ट एक्ट से रिलेटेड। सबमिटिंग एन एनुअल रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर with details of complaint and action taken, जो भी complaints आए। appeal, either party can appeal to the finding of ICC LCT to the court of tribunal। अगर internal complaint committee से कोई satisfied नहीं है तो वो कोर्ट के पे भी जा सकता है, बट हर मैटर कोर्ट जाने से पहले internal complaint committee से एड्रेस हो जाएगा, ठीक बात है, ठीक है। penalties for non compliance, if any employer is not fulfilling the post act provision, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वगैरह नहीं बनाया है तो कितने का फाइन लगेगा? 50,000 का। इन केस ऑफ रिपीटेड वायलेशन द फाइन में बी डबल्ड एंड द एम्प्लॉयर्स बिजनेस लाइसेंस में बी रिवोक्ड। समझ में आ रही बात? ठीक है, रिपीटेड वायलेशन अगर हो रहा है। अच्छा, देयर इज अ रिलेटेड टर्म कॉल्ड शी बॉक्स। शी मतलब वुमेन से रिलेटेड है ऑब्वियसली, बॉक्स मतलब, अच्छा कई बार वुमेन आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन कंप्लेनिंग, सो सी कैन कंप्लेन इलेक्ट्रॉनिकली ऑल्सो, है ना। सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैड मेड एन इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स कॉल्ड शी बॉक्स,
कि जो भी वुमेन का सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड कंप्लेंट होगा वो डायरेक्टली कहाँ भेज सकती है, मिनिस्ट्री को भी भेज सकती है। समझ में आ रही बात है ना, वहाँ से भी वो लोग ट्रैक कर सकते हैं। साथ में यहाँ के एम्प्लॉयर जो है उसको भी बताया जाएगा, वो लोग इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी हुई रहेगी, वहाँ पे उसके सारे केस डिस्कस होंगे। ऑल द केसेस विल बी डिस्कस इन द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एंड देयर अपडेट्स विल गो टू द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, दैट इज रिलेटेड टू शी बॉक्स। समझ में आई बात, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैव टेकन न्यूमरस इनिशिएटिव, दैट इज ऑल अबाउट योर पोश एक्ट। पोश एक्ट में हमने क्या देखा, डेफिनेशन, स्कोप ऑफ द एक्ट, एम्प्लॉयर को क्या करना है, कंप्लेंट कैसे होगा, कंप्लेंट वापस कैसे ले सकते हो, सजा कैसे मिलेगा, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एक्ट। समझ में आ रही बात है ना। इवन अ 15 मार्कर क्वेश्चन कैन कम दैट व्हाट इज पोश एक्ट एंड राइट द प्रोविजन ऑफ पोश एक्ट। समझ में आ रही बात है ना। तो देखो 15 मार्कर क्वेश्चन, what is POSH Act, what is POSH Act, write the provisions of हेमा कमेटी, बहुत बढ़िया, write the provisions of POSH Act, 15 मार्कर 4 पेजेस, ठीक है, लिख लोगे, पीडीएफ मिल ही जाएगा, लिख ही लोगे, है ना। डोंट राइट द आंसर बाय लुकिंग एट द पीडीएफ, रीड द पीडीएफ ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, देन बाय फ्लिपिंग द पीडीएफ ओनली, है ना, बंद कर दो उसको, रख दो, देन ओनली राइट द प्रोविजंस। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव टेकन न्यूमरस इनिशिएटिव, आई हैव गिवन न्यूमरस इनिशिएटिव, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ निर्भया फंड, आफ्टर दैट निर्भया इंसिडेंट्स देयर वाज अ निर्भया फंड मेड, है ना, फंड में पैसा होगा, पैसे से बहुत सारा वुमेन स्पेसिफिक काम कर पाएंगे, ठीक है, तो एक फंड बनाया गया फॉर वुमेन सेफ्टी। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल ऑफेंस के लिए कैसा सिस्टम, इन्वेस्टिगेशन को ट्रैक करने का सिस्टम बनाया गया। नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर, जो भी सेक्सुअल ऑफेंडर है उनका क्या बनेगा, नेशनल डेटाबेस, कहीं भी उन्होंने सेक्सुअल ऑफेंस किया होगा उस डेटाबेस में किसी और सिटी में भी रिफ्लेक्ट होगा और पता चलेगा कि वो एक रिपीटेड ऑफेंडर है कि नहीं है। समझ में आ रही बात, क्या उसको बेल देना है, क्या नहीं देना है, क्या जेल में देना है, कि कितने दिन सजा देनी है, ऑल विल बी गिवन बेस्ड ऑन दैट। नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स, cyber crime portal, obviously establishment of one stop center where women will get all the assistance if women have faced any kind of violence, one stop center will be given। scheme for universalization of women helpline जिसमें 24 आवर इमरजेंसी के टाइम पे वुमेन कॉल कर सके और उनको क्या मिल सके, हेल्प मिल सके, ऐसी चीज़ें एस्टैब्लिश हुई हैं। बट ऑल थिंग्स विल बी टॉट अगेन इन जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2, है ना, और डिटेल में थोड़ा पढ़ाया जाएगा तब, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक। चैलेंजेज इन इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वुमेन, क्या क्या चैलेंज हो रहा है, अभी मैंने बताया ना, निर्भया फंड इज नॉट यूटिलाइज। बताओ, फंड में पैसा है, पैसा को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसे होगा सेफ्टी। अगर उस हॉस्पिटल में इवन, है ना, इफ यू टॉक अबाउट दैट हॉस्पिटल की वहां पे देयर वाज डार्कनेस इन दैट हॉस्पिटल, तो क्यों था, पैसा भी है, डार्कनेस भी है, क्यों है डार्कनेस फिर, है ना। लेस देन हाफ ऑफ द एलोकेशन टू द फंड हैज बीन यूज्ड, कितना फंड जितना एलोकेट किया गया उससे आधा ही यूज किया जा रहा है। हाफ हार्टेड इंप्लीमेंटेशन, पोश एक्ट बन गया है, पोश एक्ट इज देयर बट द इंप्लीमेंटेशन इज हाफ हार्टेड। द organizations have not taken POSH Act very seriously, this is also one problem। delayed justice, है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केसेस 4 साल 5 साल 10 साल चलते रहते हैं, तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सुना है ऐसा कुछ, डिले कर दिया तो डिनाई कर दिया।
लैक्सिटी इन कन्विक्शन प्रोसीजर। लैक्सिटी एक वर्ड होता है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड, आगे आप लोग काम में ले सकते हो। 39% ऑफ ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स एंड अदर ऑफिसर्स बिलीव कंप्लेंट्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस आर बेसलेस, है ना। मतलब 39% ऑफिसर को ही लगता है कि कंप्लेन आया है तो बेसलेस है। बेसलेस कंप्लेन्स आर ऑल्सो देयर, इट्स नॉट लाइक बेसलेस कंप्लेन्स आर नॉट बीइंग फाइल्ड, है ना। सम टाइम इवन एक और पॉइंट में लिख सकता था, इवन फॉल्स कंप्लेंट्स आर ऑल्सो वन रीजन वाई, है ना, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द इफेक्टिव जस्टिस इन दैट रिगार्ड। फॉल्स कंप्लेंट्स आर ऑल्सो राइजिंग। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पढ़ा नहीं मतलब देखा, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट हैज टर्म्ड बोथ द एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, domestic violence act, as legal terrorism, that married women are using these two acts as legal terrorism against their husbands and their husbands families। ये भी चीजें हैं, है ना। एक बचपन में कहानी पढ़ी थी तुम लोगों ने, भेड़िया आया भेड़िया आया, पढ़ा था क्या, है ना। देयर वाज वन पर्सन हु यूज्ड टू टेक शिप्स along with him, है ना, और रोज ऐसे ही मस्ती करता था जाके कि भेड़िया आया। People of the village used to run towards him and he used to laugh कि कहीं भेड़िया नहीं आया, ठीक है। After 4-5 times he again shouted भेड़िया आया and nobody came at that time, and in reality the भेड़िया has came। समझ में आ रही बात। and भेड़िया took away her भेड़ मतलब जो भी ships को। तो वही अगर फॉल्स चीजें बार बार करोगे तो रियलिटी में भी विश्वास नहीं होगा, ट्रस्ट इश्यू हो जाता है। पुलिस वालों को भी हो जाता है, जजेस को भी हो जाता है, समाज को भी हो जाता है, देयर विल बी ट्रस्ट इशू। सो दैट इज इट इज वेरी नेसेसरी टू अपलिफ्ट आवरसेल्फ मोरली एंड act only when there is some element of truth. If there is no such truth, we should not act just because there is an act and we can take the benefit of the act. Implication of prevailing attitude and crimes against women. अगर वुमेन के रिगार्डिंग ऐसे ही एटीट्यूड रहा और क्राइम्स होते रहे तो पैट्रियार्की और रीइंफोर्स होती जाएगी, है ना। पैट्रियार्की विल बी फर्दर रीइंफोर्स, इट विल डिसइवेड वुमेन फ्रॉम एंटरिंग इनटू द वर्कफोर्स, है ना। अब लोग, पहले तो लोग बोलते थे कि बेटा होगा इंजीनियर बनेगा, बेटी होगी डॉक्टर बनेगी, अब तो लोग वो भी नहीं चाहेंगे, है ना। समझ में आ रही बात। people will be dissuaded, women will be dissuaded from entering into the workforce because workforce are not able to provide the safety to the women। समझ में रहे हो। chauvinistic attitude of men in the family। chauvinistic समझते हो क्या? chauvinism मतलब एक माचो एटीट्यूड, है ना। वैसा एटीट्यूड मेन का रहेगा फैमिली में कि वुमेन तो काम करने के लिए ही है। सोसाइटल एटीट्यूड लीडिंग टू मोर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, और ज़्यादा क्राइम्स बढ़ेगा, वुमेन पे फिजिकल मेंटल हेल्थ का प्रेशर बढ़ेगा, है ना। फैमिलीज और चिल्ड्रन पे खराब इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? पुलिस रिफॉर्म। वे फॉरवर्ड क्या है? जुडिशियल रिफॉर्म। जुडिशरी में भी रिफॉर्म चाहिए, है ना, फास्ट जुडिशरी चाहिए। देखो आफ्टर निर्भया इंसिडेंट्स 2013 जुडिशियल रिफॉर्म के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या था? जस्टिस वर्मा कमेटी, है ना। जस्टिस वर्मा कमेटी ने बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया है, वो हम लोग गवर्नेंस वगैरह में पढ़ेंगे, है ना। उनको और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करो। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, पुलिस ऑफिसर्स का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का ट्रेनिंग कराओ, उनकी कैपेसिटी बिल्ड कराओ कि ऐसे केसेस को कैसे डील करना है, वुमेन रिलेटेड केसेस को कैसे जल्दी से जल्दी डील करना है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ रेप क्राइसिस सेंटर, जो कनाडा, अमेरिका, यूके, बहुत जगह ऐसा रेप क्राइसिस सेंटर होता है जहाँ विक्टिम्स को रखा जाता है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, धीरे धीरे रिहैबिलिटेट किया जाता है। वी शुड बी मेकिंग सच सेंटर्स। सेंसिटिविटी ऑन पार्ट ऑफ मीडिया, मीडिया शुड बी सेंसिटिवाइज्ड, है ना। मीडिया सबसे नेगेटिव रोल प्ले करने लगता है तुरंत, उसको क्या चाहिए? माइलेज चाहिए, फटाफट मेरा सब कोई देख ले वीडियो, है ना, नाम वाम सब निकाल देते हैं ये लोग। सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन, व्हाट इज सिविल सोसाइटी? डू यू नो? सिविल सोसाइटी इज अस, है ना, जो हम लोग हैशटैग लगाते रहते हैं, है ना। हैशटैग इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया, आवर रोल इज डन। सिर्फ इससे नहीं होगा, वी शुड बी मोर विजिलेंट, मोर एक्टिव। एनजीओज क्या है? सिविल सोसाइटी का पार्ट है। एनजीओ जैसे विशाखा गाइडलाइन में कौन, विशाखा
जो एनजीओ था वही तो गया सुप्रीम कोर्ट में केस किया अलॉन्ग विद अदर एनजीओज, तो जाके सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, विशाखा गाइडलाइन। वैसे ही एनजीओज को और ज्यादा आगे आने की जरूरत है। ठीक है, दिस इज ऑल रिगार्डिंग आर वुमेन सेफ इन इंडिया। समझ में आया क्या? वेयर टू सबमिट द आंसर फॉर इवेल्युएशन, है ना, आपके ग्रुप में शेयर हुआ होगा एक ईमेल आईडी smartevaluation@gmail.com करके, एट देयर ओनली। सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन लाइक फॉल्स प्रॉमिस इन द नेम ऑफ मैरिज, प्रमोशन, जॉब एंड गेटिंग फिजिकली कनेक्टेड, वो सब ठीक है, वो भी है। कुछ पूछना है तो पूछो, देन वी विल इन टुडेज क्लास। बोलो, कुछ पूछोगे? चलो ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक विथ सम न्यू टॉपिक्स, है ना, ऑन सैटरडे। प्लीज बी सीटेड, आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट डे।